Hello student. So in last lecture we have discussed about the elimination reaction. Now before going into the depth of elimination reaction, now I am going to start with some new topic, that is substitution reaction. Okay, now substitution reaction means there is a substitution of atom or group of atom with the another atom or group of atom. For example, if we talking about the X, if it is react with the Y, at that time here X is replaced by the Y, so we can say that in this reactant X is replaced by the Y. So the final product is a Y and X liberated here. So this is the example of substitution reaction. So in this case, one atom or group of atom is replaced by the another one. Let me take one example. For example, tertiary butyl bromide. Tertiary butyl bromide. So here, if we react this tertiary butyl bromide with the OH minus, at that time this OH minus attack on this carbon, halogen as a best leaving group, leave from the molecule. So the final product is tertiary butyl alcohol. So here one atom or group of atom is replaced by the another atom or group of atom. So this is the example of substitution reaction. In short, we can say that when any atom or functional group of any substrate is replaced by another atom or functional group of reactant is called substitution reaction. Is it so? Now, based on the mechanism of substitution reaction, so which mechanism it follow? So based on this mechanism, we can describe substitution reaction in two types. First one is SN1 and the second one is SN2. SN1 and SN2. Now in case of the SN1 reaction and SN2 reaction, the 1 and 2 describe, let me take it more clearly. So first one is the SN, nucleophilic substitution reaction. That means we can say that one nucleophile is replaced by the another one. So nucleophilic substitution reaction are of two types. One is SN1 and the second one is SN2. SN1 means monomolecular nucleophilic substitution reaction. So we can say that monomolecular nucleophilic substitution reaction. One means monomolecular nucleophilic substitution reaction. Same like here, bimolecular, or we can say that dimolecular, or we can say that bimolecular nucleophilic substitution reaction. Clear? Now this 1 and 2 describes the order of reaction. So we can say that SN1 is the first order reaction. SN1 is the first order reaction and SN2 is the second order reaction. Now how it is described first order and second order? So we can say that in case of the SN1 reaction, the rate of reaction ROR, rate of reaction depend only on the reactant. So whatever the reactant we choose for the reaction, so rate of reaction, or we can say that speed of reaction is depend only on the reactant. While in case of the SN2 reaction, rate of reaction, that means ROR, is depend on reactant and reagent. So this two means rate of reaction depend on reactant as well as reagent. Here in case of the SN1 reaction, so one describes the first order reaction, its rate of reaction depend on the reactant only. Now second characteristic of SN1 reaction, this one
So we have to remember that if 1 is there, then it is a two-step process. Here 2 means it is one-step process. यहाँ पे 1 लिखा है, उसके बेस पे हमें याद रखना है ये 2 स्टेप में रहेगी. यहाँ पे 2 लिखा है, that means it is in 1 step. Let me take one example. For example, आगे जो हमने एग्जाम्पल लिया था वही ले लेते हैं. For example, tertiary butyl bromide. So as here mentioned that it is two-step process. So in the first step, removal of bromine. As we know that halogen is the good leaving group, so you leave from the molecule with the bonding pair of electron. एरो ध्यान से देखना है आपको, ये एरो यहाँ से दिखाया है. That means bromine ए बॉन्डिंग के जो 2 इलेक्ट्रॉन हो लेग के निकल रहे हैं. That means here removal of Br minus and the remaining part is carb cation. So we can say that in case of the SN1 reaction, carb cation generate. So this is the first step. In case of the SN1 reaction, carb cation generate. Now suppose if this carb cation react with the water molecule. So as we know that water molecule act as a nucleophile. So this this lone pair attack on this carbon. So here C3CH3 methyl group as it is attached with the water molecule oxygen, and this oxygen containing 2 hydrogen. Is it so? So now oxygen has 3 valency. So here hydrogen remove and we got OH, tertiary butyl alcohol as a product. Tertiary butyl alcohol as a product. So we can say that here Br is replaced by the OH. So SN1 reaction is 2 step. So we have to remember that in the first step always carb cation generate. In case of the SN1 reaction, always carb cation is generated. Clear? In case of SN1 reaction, carb cation as an intermediate, we can call that it is intermediate. इसको हम isolate नहीं कर सकते. During reaction ये form होगा और form होने के बाद speedily यहाँ पे अटैक कर देगा और प्रोडक्ट बन जाएगी. तो इसके हिसाब से हम ए बोल सकते हैं कि ए वाला जो स्टेप होगा वो वेरी स्लो स्टेप होगा, जिसको हम RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. जो स्लो स्टेप रिएक्शन का रहता है ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. इसकी स्पीड के हिसाब से हम रिएक्शन का रेट डिफाइन करते हैं कि सपोज कि रिएक्शन इतने टाइम में ख़त्म होगी. Clear? So this is slow step. Why this is slow step? Because the removal of bromine is somehow difficult task. After removing the bromine, this is carb cation. तो हमें ये पता है कि कोई भी एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा देर तक स्टेबलाइज नहीं रहता है. तो जैसे ही हम इसको वाटर के कॉन्टेक्ट में डालेंगे, इजीली वाटर कैन अटैक ऑन दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, बिकॉज इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहेगी. सो वी कैन से दैट दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन. क्लियर यहाँ तक? तो ये बात हुई SN1 रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट ओनली, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्लियर यहाँ तक? सो 2 स्टेप प्रोसेस रहेगी. किसमें? तो SN1 में. लेट वी टॉक अबाउट द SN2 रिएक्शन. सो SN2 रिएक्शन को हमने बोला बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, and to describe for the second order reaction, that means rate of reaction depend on the reactant as well as reagent. Okay, this to describe it is one step process. It is one step process. So let me take one example. For example, tertiary butyl bromide. same example हम लेते हैं, tertiary butyl bromide. ओके, हमने ये बताया कि ए जो है वो 1 स्टेप प्रोसेस है. सो वी हैव टू ऐड सेकंड न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसको यहाँ पे अटैक करवाना है, Br को वहाँ से निकालना है. चलो, अब ए यहाँ पे अटैक करेगा लेकिन इस साइड से नहीं कोई कर पाएगा. और इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि सपोज कि हमारे पास कोई एक बड़ा सा बंगला है जिसमें कमिश्नर रह रहे, ऐसा हम सोच सकते हैं. चलो, इसमें कमिश्नर है यहाँ पे.
तो हमें यहाँ पे तो उसके बॉडीगार्ड होंगे, तो हम यहाँ से अटैक नहीं कर पाएंगे, हमें कहाँ से करना पड़ेगा, पीछे की दीवार से, राइट। अगर कोई बंगलोज है उसमें हमें एंटर होना है तो यहाँ पे गार्ड रहेंगे, तो गार्ड के मीन्स हम गेट पे से इसको इसमें से एंटर नहीं कर पाएंगे, हमें कहाँ से अटैक करना पड़ेगा, पीछे की साइड से। सेम कंडीशन यहाँ पे है, ए इलेक्ट्रॉन रीच है, न्यूक्लियोफाइल है, ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन रीच है क्योंकि उसके पास तो 3 लोन पे रहेगी। सो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन इसके बीच में रिपल्जन रहेगा। ये रिपल्जन के हिसाब से OH माइनस जो यहाँ से अटैक करेगा वो यहाँ से नहीं करेगा, वो एक्चुअली कहाँ से करेगा, पीछे से अटैक करेगा। ये जो अटैक करेगा वो कहाँ से करेगा, पीछे से। दैट मीन्स एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ से OH बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ से Br का बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा और 3 मिथाइल ग्रुप प्लेन में होंगे, 3 मिथाइल ग्रुप प्लेन में होंगे। यहाँ पे जो आप 3 मिथाइल ग्रुप देख रहे हो वो प्लेन में नहीं है, वो एक्चुअली ऐसे होगा, टेट्राइडल स्ट्रक्चर होगा। सपोज कि हम मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन में एक हाइड्रोजन ऐसे स्ट्रेट लाइन में रहता है, एक हाइड्रोजन है वो डैश लाइन में रहता है, एक हाइड्रोजन है वो वेज लाइन में रहता है और ए वाला प्लेन स्ट्रेट लाइन में रहता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस 2 हाइड्रोजन इज इन प्लेन, दिस इज अवे फ्रॉम दी। सपोज के मॉलिक्यूल को हम देख रहे हैं तो ये आपकी तरफ आ रहा है, सपोज के मॉलिक्यूल को ऐसे देख रहे हैं तो ये आपकी तरफ आ रहा है, तो इसको हम कहाँ कैसे दिखा सकते हैं, वेज में। वेज बॉन्ड ये शो कर रहा है कि ये जो वाला बॉन्ड है, आप मॉलिक्यूल को जब ऐसे देख रहे हो तो आपकी तरफ आ रहा है, और ये कहाँ पे जा रहा है, प्लेन की पीछे। सपोज के ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का एक प्लेन है, तो प्लेन के आगे आ रहा है ये बॉन्ड, ये प्लेन के पीछे जा रहा है। तो ये कौन सा था, ये टेट्राइडल स्ट्रक्चर बोलते हैं हम इसको, TD, इसको हम टेट्राइडल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 मिथाइल प्लेन में होगा, 1 मिथाइल वेज में होगा, 1 मिथाइल डैश में होगा, ये भी प्लेन में रहेगा। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट थी वो प्लानर नहीं थी, लेकिन जब OH माइनस इसमें अटैक कर रहा है तो ए बॉन्ड यहाँ से फॉर्म हो रहा होगा, ए बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा होगा। ध्यान ये रखना है कि OH का जो अटैक हो रहा है पीछे से हो रहा है, वो आगे से नहीं कर पा रहा है क्योंकि ब्रोमीन इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रीच, OH जो आ रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन रीच है, तो इलेक्ट्रॉन रीच ए भी इलेक्ट्रॉन रीच, तो हियर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन रहेगा। उसके हिसाब से OH माइनस को जो अटैक करना है वो कहाँ से करेंगे, पीछे की साइड से। तो यहाँ से OH माइनस का अटैक हो रहा है, मीन्स यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ से ब्रेक हो रही है। सो एक्चुअली ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा आपको कि OH यहाँ आ गया और ACH3 यहाँ पे आ गई। ये तो बात हो गई जब हम वो छाता लेके निकलते, तो छाता पहले ऐसा रहता है और ज़्यादा पवन होने के कारण क्या हो जाए, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये पहले ऐसे था, अब ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे जो अरेंजमेंट थी वो और यहाँ पे जो अरेंजमेंट वो टोटली रिवर्स है। सो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स उसकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट। ये 3D बोला ना मैंने, एक 2 ब्लॉन्ड प्लेन में रहेंगे, एक वेज में रहेगा, एक डैश में रहेगा। सो दिस इज़ दी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। सो यहाँ पे जो अरेंजमेंट थी वो और जो फाइनल प्रोडक्ट में अरेंजमेंट है वो टोटली रिवर्स है, इसीलिए उसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स टोटली चेंज। So here change in arrangement in starting material and the product. That's why SN2 mechanism is proceeded through inversion of configuration. While in case of the SN1 configuration, it is 2-step process है, तो जहाँ से ब्रोमीन निकलेगा वहाँ से ही वो OH माइनस का अटैक हो रहा था। So we can say that it is a retention of configuration. In case of the SN1 reaction, there is a retention of configuration. In case of the SN2 reaction, there is a inversion of configuration. यहाँ तक ठीक है? So this is SN1 SN2 reaction, most important topic in organic chemistry. चलो अब हमें देखना है उसका एनर्जी डायग्राम, अब हमें देखना है उसका एनर्जी डायग्राम। ओके, in case of the SN1 and SN2, in case of the SN1 reaction it is 2-step process, right? So we can draw the energy diagram like that. यहाँ पे उस आपकी एनर्जी है, यहाँ पे है वो रिएक्शन एक्सिस है,
मीन्स के प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है वो, ऐसा हम बोल सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ओके, ए है वो 2 स्टेप में रहेगी, ए है वो 2 स्टेप में रहेगी। तो क्या होगा, रिएक्टेंट है वो पहले एक ट्रांजिशन स्टेट डिफाइन करेगा, उसके बाद दूसरा ट्रांजिशन स्टेट आएगा और फाइनल में क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। ए है हमारा ट्रांजिशन स्टेट, आपको याद हो तो वहाँ पे हमको ट्रांजिशन स्टेट मिला था कार्ब कैटायन, इसको हम बोलते हैं EA, एक्टिवेशन एनर्जी 1, एंड दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी 2। ये फर्स्ट स्टेप की है, ये जो है हमने बोला था ये फर्स्ट स्टेप है, स्लो रहेगा, तो ये फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी, ये सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी यहाँ से रहेगा ये EA2, तो सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी क्योंकि ये स्टेप फास्ट रहेगा। हमने बोला था ना कि ये ब्रोमीन को यहाँ से निकालना है हमें, तो उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ए वाला स्टेप था वो RDS था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ए वाला स्टेप के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, तो हम बोल सकते हैं कि EA1 इज एनर्जी इज़ हायर देन दी EA2। ये तो इतनी ही है क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप का इंटरमीडिएट यहाँ पे मिल गया, उसके बाद हमें ट्रांजिशन स्टेट में ले जाके उसको फाइनल प्रोडक्ट तक जाना है। अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ के रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा है, दैट मीन्स इसकी एनर्जी ज़्यादा है, मीन्स की स्टेबिलिटी कम रहेगी। सो वी कैन से दैट हियर प्रोडक्ट इज़ मोर स्टेबल। कोई भी रिएक्शन में जनरली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ही प्रोडक्ट फॉर्म रहता है। सपोज हम बोलते हैं कि X में से Y बन रहा है लेकिन Y की स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वापस X बनने की ट्राई करेगा। समझ में आ रहा है, X की स्टेबिलिटी सपोज के Y से कम है और वी कैन से दैट Y की स्टेबिलिटी X से कम है, तो ये क्या करेगा, इसकी तरफ जाने की ट्राई करेगा। सपोज कि Y की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो सपोज दिस इज फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज बैकवर्ड डायरेक्शन। सो जनरली रिएक्टेंट ऐसे कन्वर्ट हो रहा है कि उसमें से जो प्रोडक्ट मिलेगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। सो इन केस ऑफ दी SN1 और SN2 रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो उसमें प्रोडक्ट की एनर्जी जनरली ज़्यादा रहती है, सॉरी एनर्जी कम रहती है, उसके हिसाब से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। क्लियर। सो ये 1 एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज़्यादा रहेगी फर्स्ट स्टेप की, और सेकंड स्टेप है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी। ए स्लो स्टेप रहेगा, ए फास्ट स्टेप रहेगा। ओके, इन केस ऑफ द SN2 if we draw the energy diagram, so here is the activation energy and here is the reaction exists, or we can say that reaction progress. so एक ही स्टेप में हो रहा है तो हम इजीली इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि एक ही स्टेप है ना। तो ये रहेगा EA, यहाँ पे रिएक्टेंट रहेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा। सेम प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, दैट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। यहाँ तक ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन हमने लास्ट में देखा था एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या रहता है कि पास के कार्बन में से, और वी कैन से दैट फ्रॉम विसिनल पोजीशन, एलिमिनेशन रिएक्शन। सो इन एलिमिनेशन रिएक्शन हमने लास्ट लेक्चर में यही देखा है कि सपोज कि हमारे पास ऐसा कुछ है CH2Br इथाइल ब्रोमाइड। सो ब्रोमीन फ्रॉम हियर, हाइड्रोजन फ्रॉम हियर। इसको हम थोड़ा सा जूम कर दे तो ऐसे मिलेगा CH2 यहाँ पे Br है और यहाँ पे H है। सो हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, ब्रोमीन फ्रॉम हियर। सो यहाँ से दोनों रिलीज होंगे, रिमूवल ऑफ HBr एंड द प्रोडक्ट इज अल्कीन। सो हमने देखा था कि इन केस ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्टिंग मटेरियल सैचुरेटेड कंपाउंड, फाइनल प्रोडक्ट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नाउ एलिमिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो 2 टाइप्स, E1 मोनोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन एंड E2। जो हमने SN1 SN2 में देखा बिल्कुल उसी तरह से वर्क करेगा। जो E1 है और 1 दिख रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगी। सपोज कि हम लिखते हैं यहाँ पे E1 रिएक्शन एंड दिस इज E2 रिएक्शन। सो E1 के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर रहेगी ये, E2 के हिसाब से ये सेकंड ऑर्डर। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ए मोनोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ए बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्लियर यहाँ तक।
चलो एक के हिसाब से हम 1 है तो हम बोल सकते हैं दिस इज परफॉर्म इन 2 स्टेप। यहाँ पे 2 है सो वी कैन से दैट इट इज प्रोसेस इन दी 1 स्टेप। चलो अब हमें एक एग्जाम्पल लेके इसकी मैकेनिज्म ड्रॉ करनी है। पहले हम ये 1 स्टेप वाले की देखते हैं, सिंगल स्टेप में रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम, एच बी आर एच एच एंड एच। सो हमने एलिमिनेशन में वो देखा है कि यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा, मीन्स के ब्रोमीन फिक्स है। सपोज कि हम एज यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, इसका हाइड्रोजन निकालो या इसका हाइड्रोजन निकालो, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज कि हमें ए हाइड्रोजन निकालना है। सो as we know that the elimination reaction always perform in the presence of strong base. Elimination reaction either E1 or E2 always perform on the presence of strong base. Strong base we can say that NaOH or KOH और पोटेशियम टर्शरी बिटॉक्साइड, बहुत सारे आगे देखेंगे, अभी आपको याद रखना है NaOH और KOH। चलो बेस का काम क्या है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। सो E2 का हमें ये पता है कि 1 स्टेप में निकालना है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो बेस है ना वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगी। ये बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन मीन्स H+, दिस इज प्रोटॉन। हमें प्रोटॉन को बेस के साथ अटैच करवाना है और हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट दी प्रोटॉन। ये प्रोटॉन गया। अगर H- हम निकालते तो उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड आयन, इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड आयन, ठीक है। H+ को प्रोटॉन बोलते हैं, H- को हाइड्राइड आयन। फॉर एग्जांपल NaH, सोडियम हाइड्राइड, हम इसको ऐसा बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड, दैट्स वाई H- इज हाइड्राइड आयन, H+ इज प्रोटॉन। सो इन केस ऑफ द E2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में जाना है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ए जो बॉन्ड है यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और Br यहाँ से निकल जाएगा, मीन्स यहाँ से H+ गया, यहाँ से H-। आपको एरो ध्यान से देखना है, मैंने एरो यहाँ से दिखाया, दैट मीन्स दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू हियर, कार्बन कार्बन बॉन्ड, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ब्रोमीन रिमूव फ्रॉम द मोलिक्यूल विथ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो द फाइनल प्रोडक्ट इज CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था वो यहाँ पे अब डबल बॉन्ड हो गया, एक कार्बन के साथ H एंड CH3, सो वी कैन से दैट CH3। क्लियर। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे डॉट लाइन, यहाँ पे डॉटेड लाइन, यहाँ पे डॉटेड लाइन। ए क्या शो केस कर रहा है कि ए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ए न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मीन्स दिस 2 बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक एंड हियर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, carbon carbon new bond formation and this bond is going to break. So here removal of HBr. So this is the single step process. आपने स्टार्टिंग मटेरियल ले लिया, उसमें बेस ऐड किया, बेस ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ब्रोमीन यहाँ से निकल गया। सो दिस इज द फर्स्ट और वी कैन से दैट 1 स्टेप प्रोसेस। वाइल इन केस ऑफ द E2 रिएक्शन, let me start with the same example. यहाँ पे H, CH3 and Br. So in the first step, in the presence of base abstain the proton in first case. So this 2 hydrogen as it is, carbon, ब्रोमीन एज इट इज़, हियर हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पे मिथाइल एज इट इज, यहाँ से H+ गया, दैट मीन्स हियर द नेगेटिवली चार्ज्ड, यहाँ से हमने H+ निकाला, दैट मीन्स कार्बन कंटेन नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज द डिफरेंस इन SN1 रिएक्शन एंड E1 रिएक्शन। इन केस ऑफ द SN1 रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में जो इंटरमीडिएट मिलता था वो कार्ब कैटायन था, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट मिल रहा है वो कार्ब अनायन है। ओके नाउ ड्राइविंग फोर्स मिलेगा, इसको हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा। सो वी कैन से दैट हियर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज कार्बन फॉर्म द न्यू बॉन्ड एंड द ब्रोमीन एक्ट एज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप, लिव फ्रॉम द मोलिक्यूल। सो द सेकंड स्टेप इज गोइंग टू फास्ट। सो हियर
HH, double bond C, here CH3 and H. So the final product is alkene. So this step is the RDS, rate determining step, क्योंकि ये स्लो रहेगा. प्रोटॉन को यहाँ से निकालने की जो प्रोसीजर रहेगी वो स्लो रहेगी. आफ्टर द जनरेशन ऑफ कार्ब एनाइन इट कैन इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड इजीली रिमूवल ऑफ द ब्रोमीन आयन. सो वी कैन से दैट द फाइनल प्रोडक्ट दिस स्टेप इज द स्पीडी एज कंपेयर टू फर्स्ट वन. इसके कंपैरिजन में ए स्टेप होगा वो फास्ट रहेगा. सो दिस स्टेप इज दी, और वी कैन से दैट स्टेप 1 इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और वो क्या रहेगा, स्लो रहेगा. So this is the basic difference between SN1 and SN2. In case of the SN1, carb cation is generate. In case of the E1, carb anion is generate. इसको तो समझ में आ गया. ओके, इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ से जो ब्रोमीन निकलता है वो और जो हाइड्रोजन निकलता है वो एक दूसरे की एंटी पोजीशन में होने चाहिए. अगर हम इसका बॉन्ड एंगल काउंट करेंगे तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री रहेगा. मीन्स जो लिविंग ग्रुप है वो और जो हाइड्रोजन हम निकाल रहे हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट 180 डिग्री एंटी पोजीशन में होने चाहिए. सीन पोजीशन मीन्स पास. सपोज कि ये सीन पोजीशन बोल देते. सपोज यहाँ पे दो ग्रुप है तो ये सीन पोजीशन है 0 डिग्री एंगल, लेकिन एक ग्रुप यहाँ पे है और दूसरा ग्रुप यहाँ पे है. तो ये जो बॉन्ड एंगल रहेगा, सपोज कि इसको हम बोल देते थे, तो ये जो बॉन्ड एंगल रहेगा 180 डिग्री रहेगा. तो इसको हम बोलते हैं एंटी पोजीशन, और ये जो पोजीशन है उसको बोलते हैं हम सीन पोजीशन. ये पास में है, सीन पोजीशन है, ये ऑपोजिट है, एंटी पोजीशन है. यहाँ तक ठीक है. सो SN1, SN2, E1, E2 रिएक्शन इज कंप्लीटेड. क्लियर. चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. और 3 रिएक्शन है हमारे पास, जो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड द लास्ट वन इज द रिडक्शन रिएक्शन. क्लियर. हैप्पी लर्निंग.